this session would be in the two-way mode, right? What the two-way mode would be, it's like if you have any doubt on any point of time, right, you can make the raise hand and it would be notified by me, right? And straight away I'll ask that if you have any doubts or not, right? And after certain time, right, in particular intervals, I would ask to all of the attendees that whether they have understood the concept or not, or whether they have any doubts in their mind or any questions in their mind, right, or not, right? So this would be the mode of communication, right? It would be a conversative mode, right? That means I'm explaining the things. If you don't feel that, hey, this concept is new to me, or I didn't understand this concept, what it is actually, you may raise the hand over the team, or you can directly turn on the mic and interrupt me anytime, right? It would be very easy for me, right, to resume the session in the same pace, right? So, how many of you, right, the very first question, a very basic one, that how many of you have a prior knowledge about AWS, right? आप मुझे आंसर भी कर सकते हैं माइक ऑन करके, और यू कैन डायरेक्टली सेंड मी और द मैसेज, नो? सो मुझे ये पता होना चाहिए मुझे किस लेवल से स्टार्ट करना है. Amit, I just want to communicate one thing, that this batch is composite of electronics guys, as well as mechanical guys, as well as computer science and IT guys. Okay. So it would be suggested that you must start from the very basic. Because AWS might be a new concept for most of them. Sure. Okay. So pardon me if my voice goes low between the session, because I have a little cough due to the temperature changes. So please do not mind that. Okay. So what is AWS? So आप सभी ने अपने कभी ना कभी अपने entire this technological era में Amazon Prime का यूज किया होगा, और Amazon जो मार्केट है उस ये Amazon के जो हम लोग ऐप यूज करते हैं फॉर परचेजिंग, उसका यूज किया होगा. मे बी सभी किसी ने Netflix का भी यूज किया होगा, राइट? Netflix में कभी मूवी देखी होगी, और एनी ऑफ द सोर्ट, राइट? So these are the tech companies, right, which are using Amazon as their back-end service, right? So Amazon Web Server, or AWS, is the full form of AWS is Amazon Web Services. In that Amazon Web Services, there are a collection of service which Amazon provides to their user to perform some technological task, right? The very basic introduction. So Amazon Web Server की अगर मैं बात करूँ या Amazon Web Services की बात करूँ, it's nothing just a group of services. It's nothing just a group of services which is adopted by very tech giants all over the world. चाहे आपका Paytm हो, चाहे Ola हो, या फिर आपका Netflix और Amazon Prime हो, right? So ये सभी जो टेक जायंट्स हैं वो अपने बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड तो आप सभी को पता होगा, फ्रंट एंड में हम लोग HTML CSS का यूज करते हैं, राइट? या .NET या जावास्क्रिप्ट, Angular, Node.js, AngularJS का यूज करते हैं. बट इन द बैकएंड, जो बैकएंड में जो सर्विसेज चलती हैं, दैट वुड बी होस्टेड ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड दोज प्लेटफॉर्म इज AWS. क्या ये AWS का सिंगल प्लेयर इन द मार्केट? नो, ऐसा जरूर नहीं है. Amazon is the only single player,
there are multiple players in the same domain. मैं यहाँ पे आपको explain करता हूँ. The top notch is AWS. I hope you can see my screen. Amazon Web Service. Second is Microsoft Azure. Third one is GCP, Google Cloud Platform. These are the top 3 companies or the platform which are used in today's world. And there are several others, suppose IBM Watson, Cisco Cloud, right? ये सभी कुछ प्लेयर्स हैं जो वेब सर्विसेज में डील करते हैं, right? These are some players, but the market share of entire web service, suppose it's 100%, then the market capture or market share of AWS is 40 to 45%. That means it's solely owns the half of the market used or deployed over the world, right? ये मुझे कैसे पता है, हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं? Just you need to see कि AWS अपने कौन-कौन से रीजन में ओवर द ग्लोब, पूरे ग्लोब में कौन-कौन से रीजन में इन्होंने अपना सर्वर एस्टैब्लिश किया हुआ है, राइट? व्हाट द सर्वर दे हैव एस्टैब्लिश्ड ओवर द ग्लोब. आप उससे चेक कर सकते हो इसकी मार्केट कैप्चर कितना होगा. सो मैं उस चीज को दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी. बट ओवरऑल AWS क्या है? इट इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी which provides service to n number of clients to meet their technological goals. Okay, तो इस पे थोड़ा सा हम लॉग इन करके या थोड़ा इंटरेक्ट करके देखते हैं. So this is the official AWS account. So you need to create an account you need to create an account to use these services. So already मेरे पास account है, but if you need your own account, you just need a email ID and password, account name, and you can sign up with few credentials. And one of the major credentials which is used in while signing up is your payment card, right? Is your payment card. आपको कोई भी या तो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो या तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो टू क्रिएट एन अकाउंट. बट ऐसा नहीं है, इसमें से अमाउंट डिडक्ट होता है. जस्ट ₹2 का अकाउंट डिडक्ट होता है आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, और वो 1-2 दिनों में वापस से रिफंड कर दिया जाता है, जस्ट टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर email ID and whatnot, right? So this is the basic thing which is needed to be done, right? Either you can use a debit card or you can use a credit card. अब AWS में अगर मैं लॉग इन करता हूँ, let me log in first and then I'll show you. In case कहीं भी डाउट होगा आप मुझसे पूछेंगे, right? So this is the console or the welcome console of the AWS. जहाँ पे हमारे पास कुछ आइकन्स है. These are the service. If you tap on this, you can see the number of services present. Recently viewed में मैं इतने सर्विस को भी recently view किया हूँ 1-2 दिनों में, तो यहाँ पे ये mentioned है. If you click on all services, you can see the n number of services provided by the AWS to their clients. अब ये सर्विसेज क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीजें हम अपने सेशन में, आज के ही सेशन में समझेंगे. तो हमारा सेशन जो होगा, वो एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ. हमारा जो सेशन होगा 2 दिनों में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट डे, आज का डे है, हम AWS को समझने में लगाएंगे. AWS होता क्या है, उसमें हम कैसे इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस क्या होता है, स्टोरेज कैसे प्रोवाइड की जाती है, सिक्योरिटी कैसे देते हैं, and whatnot, right? So database कैसे create करते हैं, lots of other things, right? Now in the next day, कल वाले क्लास में और कल वाले डे में हम क्या करेंगे, हम जो भी हमने अभी तक आपने जो 2 दिन और 4 दिन का सेशन पहले अटेंड किया होगा,
उसमें आपने कोई भी एल्गोरिदम सीखा होगा या एल्गोरिदम के बारे में समझा होगा कि व्हाट इज एन एल्गोरिदम, राइट? मशीन लर्निंग के ट्रेनिंग सेट क्या होते हैं, मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, व्हाट इज द एल्गोरिदम वी यूज, वो सभी एल्गोरिदम्स या उनमें से कोई भी एक एल्गोरिदम आप डिप्लॉय करके देखोगे AWS के सर्विस का यूज करके. एज फॉर एग्जांपल, सपोज मैं KNN का यूज करना चाहता हूँ और न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करना चाहता हूँ, राइट? आई वांट टू यूज द न्यूरल नेटवर्क. सो न्यूरल नेटवर्क हम लोग यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अगर मुझे AWS के बारे में नहीं पता है, इफ आई एम नॉट यूजिंग AWS, तो व्हाट वुड आई डू? मैं एक लैपटॉप लूंगा, अपना चाहे किसी और का, मैं एक लैपटॉप लूंगा, उस पे कुछ इंस्टॉलेशन करूंगा सॉफ्टवेयर का, जैसे पाइथन इंस्टॉल किया मैंने, pandas, फिर numpy, matplot, ऐसे करके कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एंड देन इस पे हम अपना कुछ कोड लिखेंगे एंड देन उसको कंपाइल करेंगे ट्रेनिंग सेट बनाने के लिए, देन ट्रेनिंग डेटा बनाने के लिए, एंड देन उसको फिर एल्गोरिदम हम बनाएंगे, राइट? एल्गोरिदम बिल्ड करेंगे, ट्रेन करेंगे, डिप्लॉय करेंगे. तो ये हम बेसिक वे में करते हैं. बट इन द AWS में ऐसा नहीं होता है. AWS आपको बहुत ही सिंपलिस्टिक वे देता है आपकी चीजों को क्रिएट एंड यूज करने के लिए, राइट? इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल वे टू इंटरेक्ट विथ योर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल्स और द एल्गोरिथम्स, राइट? तो वो हम कैसे करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल वाली क्लास में. आज वाली क्लास में क्या AWS होता है वो हम पहले समझेंगे, राइट? ओके, उसके डिफरेंट सर्विसेज जो हम लोग यूज करने वाले हैं. आई हैव सम डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास. ओके, कमिंग बैक टू दिस सर्वर. नाउ you can see there are lots of services present over here. On the left hand side you can see the analytics, AR, VR, blockchain, compute, container, databases, developer tools, front end and mobile applications, game development, Internet of Things, machine learning, media services, robotics, satellite, security and storage. There are lots of services. These are basically a group. If you go to the machine learning, this is the group. Inside this machine learning group, there are these services, right? You can see these are the services which are used in machine learning algorithms, right? Similarly, if you go to the analytics, we can see the analytics one, right? तो हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे. चलो, okay. So these are the service. यहाँ पे आप सर्विस चूज कर सकते हो. इन केस अगर आपको सर्विस कोई डायरेक्टली ढूंढनी है, just type the service name over here and that service will be open. Okay. Now this is the console or cloud shell. This is the notification icon. If you need any help, you can go over there. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो नॉर्थ वर्जीनिया, ये बेसिकली वो रीजन है जिसमें मैं काम करने वाला हूँ, राइट? If you drop it down, you can see the number of regions available. Virginia, Ohio, California, Oregon, Mumbai, Osaka, Seoul, Singapore, and so on. Right? So these are the regions जहाँ पे AWS ने अपने सर्वर्स को लगाया है, सेटअप किया है. These are the physical servers. Right? Physical computers हैं जहाँ पे जो इन जगह पे located है. राइट, बट एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट एड्रेस वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो शेयर नहीं की जाती. बट दीज आर द ज्योग्राफीज जहाँ पे सर्वर लोकेटेड होते हैं. एंड हियर यू कैन सी माय अकाउंट आईडी, मेरे अकाउंट की जानकारी, एंड द बिलिंग डैशबोर्ड. ऑब्वियसली बिलिंग होती है क्योंकि AWS की हम सर्विस यूज कर रहे हैं. वी नीड टू पे सम अमाउंट टू द AWS. तो उसके बिलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिस्प वे है इसकी बिलिंग करने का. मैं आपको दिखाता हूं. इफ यू गो टू द माय बिलिंग कंसोल, व्हाट यू विल फाइंड दैट माय टुडेज मंथ, मतलब 9 तारीख तक का जो मेरा बिल जनरेट हुआ है, दैट इज $4, $4.25 USD का जनरेट हुआ है. इफ यू गो स्क्रॉल डाउन तो आपको दिखेगा कि मैंने जितनी सर्विस, यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉस्ट बाय सर्विस लिखा है. दैट मीन्स व्हाट? You have to pay only for those services which you have used.
ये बहुत ही अच्छी चीज होती है AWS में कि आपने जो सर्विस यूज किया है सिर्फ आप उसी की पेमेंट करेंगे, आपको कंप्लीट चैनल की या कंप्लीट सर्विसेज की कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट every second, if your service is running every second, then every second would be billed. हर एक सेकंड बिल्ड होता है. लेकिन आप सोचोगे सर ऐसे में अगर मैं कोई सर्विस यूज कर रहा हूं, मैं उसको बंद करना भूल जाता हूं या उसको क्लोज करना उस सर्विस को भूल जाता हूं, तो मेरे पास बहुत ज्यादा बिल हो जाएगा. या फिर मैं सीखने के पर्पस से, जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस, मैंने AWS की कोई सर्विस यूज करी है जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस, बट उसके लिए भी मुझे बिल जनरेट हो जाएगा, तो वो मेरे लिए एक पेन पॉइंट होगा. तो AWS ने इसका भी ध्यान रखा है कि आपको कुछ सर्विसेज अप टू सर्टेन अमाउंट आपको वो सर्विसेज फ्री मिलती हैं. इफ यू क्रॉस दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, then only you have to pay, and it's very minimal amount, right? $0.02 per second. It's very less, right? So okay, so this is basically the billing way of AWS. If you go down there in the billing preferences, you can turn off their auto deduction part. You can see that you can turn off their auto deduction part from your credit card. Right, turn on if you want the direct billing from your credit card or your debit card. If you turn it off, then it is not billed. You'll receive an email of certain bill amount and you have to pay within a certain time. Okay, so this is AWS. So AWS में आपने देखा कि कितनी सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं. हमें कौन सा सर्विस यूज करनी है और AWS का मार्केट में यूज क्यों होता है, why AWS has been used, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है. सपोज करें मुझे गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाना है, सिमिलर टू गेट. सपोज मैं गेट, उत्तराखंड गेट का एग्जाम मैं कंडक्ट करवाना चाहता हूँ. तो उत्तराखंड गेट एग्जाम करने के लिए मैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहता हूँ. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चों को एक कंप्यूटर देना पड़ेगा, करेक्ट. वो कंप्यूटर किसी भी कॉलेज या जहां मेरा सेंटर होगा उस कॉलेज की प्रॉपर्टी होगी, राइट. दैट इज द एसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. अगर मैं किसी कॉलेज से टाई अप करता हूं फॉर द एंटायर गेट एग्जामिनेशन, जो कि 1 मंथ के लिए चलता है. 1 मंथ के लिए एग्जामिनेशन होती है ना, 4 सेशन में, 4 वीकेंड में हमारा गेट का एग्जाम होता है, करेक्ट. तो 1 मंथ के लिए मुझे कॉलेज को या उस इंस्टीट्यूशन को पे करना पड़ेगा. मैंने आपके सपोज करो 1000 कंप्यूटर्स रेंट पे लिए हैं, तो मुझे 1 मंथ का पे करना पड़ेगा. बट एक्चुअल यूजेस इन कंप्यूटर्स का कैसे यूज हुआ, सिर्फ 2 दिन, सैटरडे और संडे हम लोग ने यूज किया है इन 1000 कंप्यूटर्स का. तो एक्चुअली अगर देखा जाए मुझे सिर्फ 2 दिनों की बिलिंग होनी चाहिए थी पर वीक, इंटू 4 कर दो, दैट इज मुझे 8 डेज की बिलिंग होनी चाहिए थी. बट एक्चुअली में मैंने कितने दिन की बिलिंग करवा ली है, 30 डेज की. कंसेप्ट समझ में आ रहा है. इन द सेम वे सपोज कीजिए अगर मैं एक कंपनी ओपन करता हूं, या आप में से कोई एक कंपनी ओपन करता है, ऑफ 100 एम्प्लॉयज, आपको 100 कंप्यूटर चाहिए होंगे, राइट. आपने एक IT कंपनी ओपन की है, आपको 100 कंप्यूटर चाहिए होंगे, करेक्ट. अब 100 कंप्यूटर चाहिए होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाएंगे, आप 100 कंप्यूटर को परचेज करेंगे. तो परचेजिंग के टाइम, क्योंकि 100 कंप्यूटर आपके कंपनी का एसेट होगा, राइट. आपकी कंपनी का क्या होगा, 100 कंप्यूटर, दीज वुड बी द एसेट ऑफ योर कंपनी. तो आप ये चाहोगे कि जो 100 कंप्यूटर मैं परचेज करने वाला हूं उसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी अच्छी हो. दैट मींस 8 GB रैम हो, 2 GB का ग्राफिक कार्ड हो, 1 टेराबाइट की या 2 टेराबाइट की आपकी हार्ड डिस्क हो, एंड फलाना, राइट, लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो ये चीजें होंगी. तो इसका आपको अगर एक कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट निकाला जाए तो 40,000 की आपका ये एक कंप्यूटर का प्राइस पड़ता है. इनटू अगर 100 कर देंगे तो दिस वुड बी द फाइनल प्राइस ऑफ योर द नेट एसेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ
बेयर मिनिमम कंपनी, करेक्ट। यहां पे रोल आता है AWS का। AWS ने आपसे पूछा कि आपको कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, आपने कहा मुझे 100 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो AWS कहते हैं ओके, आई विल प्रोवाइड यू 100 कंप्यूटर ऑफ सपोज 32 GB RAM, 5 TB हार्ड डिस्क एंड एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो एंड द बेसिक नीड्स थिंग, राइट। बट ये एक कंप्यूटर प्राइस मुझे आप 30 रुपीज पर मंथ ही दीजिएगा, 30 रुपीज पर मंथ ही देना आप, राइट। तो एक महीने में या एक साल में मुझे हार्डली 24,000 रुपीज या 36,000 रुपीज मुझे लगेंगे हार्डली। यहाँ पे जो अमाउंट लग रहा है और यहाँ पे जो अमाउंट लग रहा है, दैट इज अ वेरी बिग, द डिफरेंस इज वेरी ह्यूज। तो मैं कोई भी कंपनी में ये देखूंगा कि ठीक है, मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूं। दूसरा चीज क्या होगा जो AWS आपको ऑफर करता है, ठीक है आपने प्राइस पे किया, दैट इज गुड, मैं आपको एडिशनल सर्विस भी देता हूं। क्या एडिशनल सर्विस है? मैं आपको सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दूंगा काम करने का, दैट इज हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट यू विल रिसीव ऑन द AWS। दैट मींस जैसे आप लोग के कॉलेज में भी, आपके इंस्टीट्यूशंस में भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके एक फैकल्टी या कोई बंदा बैठता होगा, जिसके पास एक मास्टर पासवर्ड होता होगा किसी भी लैपटॉप को अनलॉक करने के लिए, राइट। अगर वो बंदा या दैट पर्सन लेफ्ट द कॉलेज सडनली, राइट, और दे ब्रीच द सिक्योरिटी इन योर कॉलेज इटसेल्फ, तो डेटा का बहुत लॉस हो सकता है। सिमिलरली फॉर माय कंपनी एज वेल, अगर मैं 100 कंप्यूटर का डेटा अगर निकालने लग जाऊं या निकाल के कहीं बेच दूं, वो मेरे लिए बहुत एक बड़ा पेन पॉइंट हो जाएगा मेरी कंपनी के लिए। तो वो चीज को हैंडल करने के लिए AWS कहता है मैं आपको सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देता हूं फॉर ईच एंड एवरी कंप्यूटर्स यूज्ड अंडर माय सर्विस, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। थर्ड थिंग, सपोज कीजिए आप आपकी कंपनी पे, सपोज आप पेटीएम जैसी कंपनी का यूज कर रहे हो, और पेटीएम जैसी आपने कोई कंपनी बनाई है, सपोज ATM नाम देता हूं मैं, ATMM नाम देता हूं, सपोज कर कोई भी नाम दे दिया मैंने, ओके। नाउ बिफोर 2012 से पहले पेटीएम आ चुका है। पेटीएम कब आया? 2010 में। 2000 ये 2 सालों में इस कंपनी के ऊपर लोड बहुत कम था, बिकॉज सभी को पेटीएम या ऐसे किसी टाइप की सर्विस की नॉलेज नहीं थी और दे फील अनसिक्योर्ड, तो इन पे ट्रैफिक बहुत कम आता था। बट सडनली जैसे 2014 में हुआ और डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हुआ, राइट, डिमोनेटाइजेशन के 2016 में जैसा हुआ, नाउ इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि अचानक से इस जैसी कंपनी के ऊपर वर्कलोड और ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने लगेगा। मतलब इसके सर्वर पे लोड बढ़ने लग जाएगा, करेक्ट, लोड इंक्रीज होगा। और जैसे आप एग्जांपल समझिए, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, करेक्ट, अभी लाइव एग्जांपल बता दो, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग किसने ली है? जियो सिनेमा ने ली है, वेरी गुड। तो जियो सिनेमा ने इतना एज्यूम नहीं किया था कि इतना ह्यूज क्राउड फीफा वर्ल्ड कप देखने आएगा उनके प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने सर्वर जो लिया था बहुत ही लाइट सर्वर लिया हुआ था, बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक की वजह से ये सर्वर क्या हो रहा था? हैंग हो रहा था। वेरी फर्स्ट डे, जिस किसी ने भी मैच देखा होगा, वेरी फर्स्ट डे आपको ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि इनका सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, राइट। और ये एक बहुत बड़ा न्यूज भी बना था कि जियो सिनेमा का सर्वर डाउन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूज ट्रैफिक। तो AWS क्या कहता है? ओके, यू डोंट वरी अबाउट द ट्रैफिक, आप ट्रैफिक के बारे में चिंता नहीं कीजिए, दैट एंटायर ट्रैफिक वुड बी हैंडल बाय अस। कैसे हैंडल करते हैं? सपोज आपने, एज फॉर एग्जांपल, सपोज आई एम टेकिंग द लाइव एग्जांपल, सो डू नॉट माइंड इट। सपोज मैंने परचेज सिस्टम या अपने सर्वर परचेज करने के टाइम में मैंने 800 GB मेमोरी मांगी थी AWS से, रेंट पे लिया था 800 GB कंप्लीटली, राइट। बट मेरा जो डेटा है वो 800 GB से बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरा पेलोड 800 GB से बहुत ज्यादा आ रहा है।
तो AWS क्या करेगा, 800 GB के 2 इंस्टेंस लॉन्च कर देगा, राइट। 800 GB के 2 इंस्टेंस लॉन्च कर देगा ये खुद ब खुद, राइट। इस सर्विस का नाम है लोड बैलेंसर, आप अभी देखना लोड बैलेंसर, राइट। अगर और भी बढ़ती है तो ये एक और 800 GB का इंस्टेंस लॉन्च कर देगा। लेकिन आप कहोगे सर इस केस में तो मेरे बिलिंग तो 3 टाइम्स हो गया। तो ऐसा होता है जब आपका लोड बढ़ता है तो आपकी अर्निंग भी बढ़ती है, आपकी वेबसाइट पे अर्निंग भी ज्यादा आती है, करेक्ट। अर्निंग और जैसे ही ट्रैफिक जाएगा, जैसे मैच खत्म हो गया तो ट्रैफिक जियो सिनेमा से हटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये AWS क्या करेगा, इन जो सर्विस जो इंस्टेंस नया बनाया था उसको वापस से क्लोज भी करता जाता है। हेंस मुझे सिर्फ उन्हीं सर्विस का पे करना है जो एक पर्टिकुलर टाइम में यूज हुई है। जैसे ये सपोज कर लो 2 घंटे चला, ये सपोज कर लो 1 घंटे चला, और ये सपोज करो 8 घंटे चल रहा है। तो मुझे सिर्फ इतने अमाउंट इतने टाइम का ही पे करना है, ना ही मुझे 24 आवर इंटू 3 का पे करना है। ऐसा नहीं करना है मुझे, राइट। मुझे सिर्फ 8 to 10 and 11 आवर्स का ही पे करना है। So this flexibility is given by the AWS, right? In the server creation, अगर मैं सर्वर क्रिएट करता हूं तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सोचते हो कि मैं IoT से रिलेटेड कोई काम करता हूं, सपोज मुझे IoT से रिलेटेड कोई काम करना है या फिर मशीन लर्निंग का काम करना है, तो मशीन लर्निंग में आपको पता होगा या IoT में पता होगा, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन टूडेज वर्ल्ड डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इंपॉर्टेंट होने से क्या बेनिफिट है, बिकॉज हम हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। वी आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग, द फूड इनटेक, द स्टेप्स वी वॉक, द वाटर वी ड्रिंक, द स्लीप वी टेक, राइट। तो एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय समवन एल्स। हमारे अलावा ये चीजें कोई और भी मॉनिटर कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्मार्ट वॉचेज और स्मार्ट डिवाइसेस, करेक्ट। सो ये जो डेटा है ये हमारे फायदे के लिए, उसको एनालिटिक्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो जितना ज्यादा स्मार्ट डिवाइसेस बढ़ेगा उतना ज्यादा डेटा का लोड बढ़ेगा, राइट। वी हैव सो मच ऑफ डेटा, राइट। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए, आपके पास बहुत सारा डेटा है, उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे अलग अलग सर्विस है। जैसे S3 है, स्केलेबल स्टोरेज, दैट मीन्स दैट स्टोरेज विच कुड बी स्केल्ड अप और स्केल्ड डाउन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक ऑफ द डेटा, कितना डेटा हमारे पास आ रहा है। सिमिलरली इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा, AWS डेटा लेक, lake. So this is another a service, AWS data lake, जिसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। हमारे पास बहुत सारा डेटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट, इन द सिक्योर्ड वे, इन द सिक्योर्ड मैनर। तो AWS समझ में आ गया बेसिकली कि क्या होता है कि हम एक कुछ भी सर्विस यूज करना है, वो सर्विस हम अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल ना करके, यूज ना करके, हम AWS के सिस्टम का यूज करें या AWS के सर्विसेज का यूज करें, सो दैट वी हैव टू make our calculations or algorithm fast, along with the security, along with the scalability, along with the data collection, right? तो ये सभी चीजें हमें एक ही जगह मिल रही हैं, तो हम उसका ही ज्यादा यूज करेंगे। So that AWS is leading the path, or it is very required in today's industry, right? आज की हर एक कंपनी, if you talk about any of the company, वो किसी ना किसी सर्विस का यूज करती है AWS में। अगर आप ओला ऐप का यूज करते हो तो ओला में जो नोटिफिकेशन आता है, हम गूगल मैप्स का यूज किया जाता है या मैप यूज किया जाता है, वो सभी की सभी AWS से लिंक्ड है, राइट। पेटीएम है, ओला है, उबर है, ओयो है, एंड you can see Agoda hai, there are lots of things. And in fact, if you check on the live streaming jo hoti hai, these are also the part of
any of the service of AWS. So AWS में list of service बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमें क्या करना है? What we need to do? We need to figure out what service we need. हमें सभी सर्विस का यूज नहीं करना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमें कौन से सर्विस चाहिए, राइट? तो हमें क्या करना है? अभी हमें मशीन लर्निंग पे काम करना है. सो मशीन लर्निंग में to deploy and to deploy the algorithm, to create an algorithm, to train an algorithm and deploy an algorithm, right? We need a basic service named as Amazon SageMaker, right? If you can see in the description, it's build, train, deploy machine learning models. आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो. So हम लोग अपने next वाले सेशन में AWS SageMaker पे भी काम करेंगे. But SageMaker को यूज करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग सर्विसेज भी चाहिए होते हैं. वी नीड सम सपोर्टिंग सर्विस एंड दो सपोर्टिंग सर्विस आर EC2, which is a very basic and very required service of AWS, which is EC2. So the EC2 to create our virtual server on the cloud, and the second service is S3, which is scalable storage service of the cloud. Third is IAM, right? This is the access identity and access management service. So ये तीन प्राइम सर्विस हैं जो कि हम लोग को यूज करनी है अपने AWS के जर्नी में. जरूरी नहीं है कि आपको यही तीन यूज करनी है. आप अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर या थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, so there are lots of other service which may suit your requirement. I'm not talking about what I'm telling you, I'm talking about what your requirements are, right? So these are the services which are used for machine learning and AI algorithms or training, right? So आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे depending on your needs, and then you can work on. Now आप कहोगे सर इसको पढ़ेंगे कहाँ से? From where I'll learn, right? So AWS ने इन सभी सर्विसेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है. Suppose if we talk about EC2, go on the EC2, or you can directly go to the documentation section over here. You can see if you type EC2, you can see the documentation part. You can directly go over here or scroll it down. If you go on the EC2, scroll it down, or okay, just scrolling down on the right hand side, you can see the getting started guide and documentation and all the resources. So what if you open it up, you can see the complete basic guide is available for each of the service. Suppose मैं इसका यूज करता हूँ, तो आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा EC2 क्या होता है, उसके फीचर क्या है, राइट? How we can get started with it, and what are the various things, right, for networking and security related, what is related to this EC2, and then we can go ahead, right? So the documentation part is very easy and brief for each and every service present on the AWS. So it would be fun to learn from the documentation directly, or else you can watch any of the videos over the YouTube of Udemy or Coursera and whatnot. Okay, so okay, again, so any doubts? कुछ पूछना है यहाँ तक? Okay, so there is a question, IBM Watson में भी क्या सेम सर्विस ही प्रोवाइड करता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. IBM Watson में भी सेम सर्विस प्रोवाइड होती है, but yes, there are some services which are you can relate, right? मैं IBM Watson पे काम नहीं करता हूँ. I mostly use AWS and some percentage of Microsoft Azure, some percentage. Just because, but yes, on the AWS or any of the service, there are some similar service with different names available on all of these platforms, right? So you can go through that and check out. Okay,
So any doubts? Any doubts till now? Any else doubt? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए. ओके, तो देखो दो, अब हम थोड़ा सा डीप जाते हैं अपने डेटा सेट में. अच्छा, वन मोर थिंग, सॉरी, वन मोर थिंग. अगर ब्रेक की रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे पिंग कर देंगे. 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक हम दे देंगे, राइट. हम ट्राई करते हैं 8 बजे एक ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का, ज्यादा नहीं, जस्ट फॉर 10 मिनट्स. एंड आफ्टर दैट सेशन पे क्लोजिंग. या Yes. Actually, break is scheduled to be at 7:50. Okay. And वो कब तक रहेगा? 10 minutes. For 10 minutes. Okay. And the next session will resume at 8. 8 to 8:50. Okay. Got it. And finally, there is a session for questionnaire that is from 9 p.m. to 9:30 p.m. Fine. That's good. That can be used for session also. Some part session and some part for query. Okay, sure. Query part. Okay, that would be great then. So now हमें 3 सर्विस मेजरली यूज करना है, EC2 एंड S3 एंड IAM. ये सर्विस क्या होती है, कैसे होती है, हम अभी अच्छे से समझेंगे. आई हैव द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट, बट आप एक डिफरेंस समझिए. यू कैन सी द डिफरेंस फर्स्ट. हमारे पास अपने टास्क करने के लिए, टू परफॉर्म आवर वर्क और टास्क, वी हैव 2 ऑप्शंस. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ध्यान से समझिएगा इस चीज को. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन क्रिएट अ मशीन. We can create a machine on AWS of required operating system, RAM, ROM, etc. Right? And then we can install different libraries required for our task, our project. Okay, हम उसमें different libraries या different functionality, database, ये सारी चीजें हम इंस्टॉल करके अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं. We can create our own server. Okay, एक तो ये वे है. क्या किया हमने यहाँ पे, अपना एक AWS पे हमने एक कंप्यूटर रेंट पे लिया. जो भी इसका रेंट होगा मैं पे करूंगा. इसमें हमने रैम, रोम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरीज, ये सारा कुछ हमने इस पे इंस्टॉल कर दिया. जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा, सब कुछ हमने इंस्टॉल कर लिया. और इस कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट करके हम उस पे अपना काम करेंगे. Whatever we want, right? It is just like a normal computer, but हम किसी और का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, बस ऐसा समझिए. ठीक है, चाहे यूजिंग एनीडेस्क और स्काइप, हम किसी और का सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऐसा. दूसरा जो हमारे पास कंसेप्ट है और वे है टू यूज एग्जिस्टिंग services of AWS available for
different needs और different application. अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सर्विस AWS पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं. We can use those service to achieve our goal, right? We can use directly those service. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जितनी सर्विस हमने यहाँ पे यूज की है, सपोज हमने 3 सर्विस यूज की, तो हमें पेमेंट 3 सर्विस का करना पड़ेगा. और यहाँ पे हमें किसी चीज का पेमेंट नहीं करना है, बस जो सिस्टम हमने रेंट पे लिया है और जो मेमोरी जो हमने रेंट पे ली है, ठीक है, हार्ड डिस्क, उसी का पेमेंट करना पड़ेगा. मतलब सिस्टम का पेमेंट एंड उसकी मेमोरी का पेमेंट, बस ये 2 चीजों का पेमेंट करना है. तो यहाँ पे दोनों वे है आपके पास, आप जिसका भी यूज करना चाहें उसका यूज कर सकते हैं, राइट. दोनों ही चीजों में जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसमें हम EC2 का यूज करके अपना एक मशीन क्रिएट करते हैं. यहाँ पे we'll create our own machine and then we can install different things on that particular machine and then we can use it. इस वाले सिस्टम में हमें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. Everything is pre-installed on that particular service. Just we need to put the codes and run the code, right? Train the set, put the data set and train the set. बस हमें इतना काम करना है. यहाँ पे हमें S3 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और IAM की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, राइट. IAM का क्यों रिक्वायरमेंट पड़ता है, S3 क्या होता है और EC2 क्या होता है, अभी हम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम अच्छे से समझ लेते हैं. EC2 का आज हम लाइव एग्जांपल भी करके देखेंगे, एक मशीन के देखेंगे एंड देन we'll install something which is required and then we can use that particular machine. And in the next in that next अभी जो सेशन होगा उसमें फिर हम S3 को भी देखेंगे एंड IAM को भी देखेंगे. बट इनका प्रैक्टिकल जो है, the practical which is required for this S3 and IAM would be happen in the next class, which is scheduled for tomorrow. ये हम कल के लिए हम शेड्यूल करके रखेंगे, राइट. तो 2 सेक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम इसका यूज करेंगे. ओके. अगर इसमें हम सिस्टम को करते हैं, EC2 पे जाते हैं, तो सर्विसेज हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाता है. लेकिन आपको, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, जैसे आपने रैम लिया या रोम लिया इसका, ठीक है, हार्ड डिस्क आपने जो यूज किया वो 8 GB का हार्ड डिस्क यूज किया है, राइट. अब 8 GB में अगर आपको यूज कर रहे हो और आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है, ट्रेनिंग डेटा सेट बहुत बड़ा ले रहे हो, 8 GB बहुत जल्दी फिल हो जाएगी. 8 GB से ज्यादा अगर आप डेटा ऑक्यूपाई कर रहा है आपका सिस्टम, तो आपको रुकेगा नहीं, आपको एडिशनल डेटा दे दिया जाएगा, उस एडिशनल डेटा का चार्ज लिया जाएगा, करेक्ट. तो यहाँ पे भी पेमेंट ऐसे ही बढ़ती है. हाँ, जो लाइब्रेरी यूज कर रहे होंगे इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे इनसाइड दिस कंप्यूटर. ये आपका जैसे नॉर्मल सिस्टम हो गया, आपका लैपटॉप वैसा ही रहेगा, करेक्ट. या एनीथिंग एल्स? ओके. Okay, so we'll resume for 8 and just have a break for 10 minutes. Okay, guys. Okay, so I hope सभी आ गए होंगे and you can see my screen as well. Okay, so ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं. Now, अभी तक मैंने जो बताया आपको, these are the services which you have all gone through कि क्या क्या सर्विसेज हैं. और ऐसा नहीं कि मैं सभी सर्विस को बता पाऊँ, इट इज नॉट पॉसिबल बेसिकली, बट यस व्हाइल रीडिंग द नेम आप उन चीजों को खुद ही समझ जाओगे व्हाट दैट पर्टिकुलर सर्विस इज ऑल अबाउट, राइट. तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके सामने लिखी है. दैट इज व्हाट इज द इंस्टेंस. दैट मींस, इंस्टेंस मींस एक वर्चुअल मशीन. इंस्टेंस का मतलब क्या है? एक वर्चुअल मशीन. टाइप में उसके कोर्स हार्डवेयर डिस्क होंगे.
इंस्टेंस वॉल्यूम बेसिकली का मतलब क्या है, हम एक उसको हार्ड डिस्क असाइन कर रहे हैं जो कि टेम्परेरी है, हम जब चाहे उस हार्ड डिस्क को डिलीट कर सकते हैं। EMI मतलब एक इमेज, जैसे हमारा अमेजॉन मशीन इमेज इसको हम बेसिकली कहते हैं, जैसे विंडो का इमेज होता है ना, वैसा ही, ठीक है। की पेयर का मतलब क्या है, व्हाइल लॉग इन टू आवर वर्चुअल मशीन, हम अपने वर्चुअल मशीन में लॉग इन करने के लिए हमें एक की पेयर चाहिए होगा, वो की पेयर व्हाइल क्रिएटिंग दैट मशीन हमें डाउनलोड करना पड़ता है, वो जनरेट होकर मिलता है, हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो दैट इज द की पेयर, इट इज बेसिकली अ फाइल, पेम फाइल, इसकी एक्सटेंशन है PEM, पेम फाइल। ओके, द रीजन मींस किस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में हमारा मशीन लोकेट किया गया, असाइन किया गया हुआ है, राइट, उसके प्राइस, लॉज एंड नेटवर्क लोकेलिटी। अवेलेबल जोन्स मींस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल जोन्स अवेलेबल हैं। ओके, सो इफ यू see, these are the models of our machines. हमारे पास T2 micro, T2 small, T2 medium, these are the machines. ये मॉडल्स है जिसमें एक CPU मिलता है, CPU का चार्ज पर 6 आवर्स, CPU क्रेडिट्स पर 6 आवर्स, मतलब उसका जो चार्ज है वो 6 क्रेडिट होता है 1 आवर में, राइट। सिमिलरली मेमोरी कितनी जीबी आपको मिलेगी, 1 GB, 2 GB, 4 GB एंड सो ऑन, राइट। स्टोरेज EBS ओनली, मतलब इलास्टिक बीन सर्च ओनली, मतलब EBS एक अलग सर्विस होती है जो आपकी इलास्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। सिमिलरली फॉर T2 माइक्रो एंड these are for the medium, these are for large and these are for extra large. You can see 32 CPU है, that means 32 कोर का आपको लैपटॉप मिल रहा है। हम लोग क्वाड कोर, ऑक्टा कोर देखा है, ये 32 कोर का आपको लैपटॉप दिया जा रहा है विथ मेमोरी ऑफ 244 GB एंड SSD, वैसे आपको SSD पता होगा, तो 2 into 320 SSD का, ऐसे करके आप अपने मॉडल को चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, व्हाट पर्टिकुलर योर रिक्वायरमेंट इज, आप अपने मॉडल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। EC2 में ही एक प्राइसिंग मॉडल होती है जो कि फ्री टायर की होती है। फ्री टायर मींस उस पर्टिकुलर सर्विस का यूज करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट यस, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर आपने सर्विस का यूज किया, करेक्ट, फ्री टायर में है फिर भी, और आपने उसको टर्मिनेट नहीं किया अपने यूजर्स खत्म होने के बाद, या फिर आपने उसकी मेमोरी को या जो हार्ड डिस्क आपने ऑक्यूपाई किया था उसको रिलीज नहीं किया, देन दैट पर्टिकुलर थिंग वुड बी चार्ज, वो फिर आपको चार्ज किया जाएगा इन दिस सेक्शन ऑन डिमांड इंस्टेंस, सॉरी रिजर्व्ड इंस्टेंस में आपको चार्ज किया जाएगा, करेक्ट। तो अनयूज्ड इंस्टेंस कैन बी सोल्ड टू द सेकेंडरी मार्केट, मतलब आप उसको क्लियर भी कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो एंड टर्मिनेट भी कर सकते हो। नाउ वेरी क्रिटिकल थिंग इज कि ऑन डिमांड इंस्टेंस भी हम ले सकते हैं, दैट मींस अभी मुझे पर्टिकुलर इसी मोमेंट मुझे एक इंस्टेंस चाहिए सेम कॉन्फ़िगरेशन का, ताकि मेरा सर्वर या मेरा वेबसाइट डाउन ना पड़े, राइट, या मेरा एप्लीकेशन डाउन ना पड़े, इसके वजह से मुझे ऑन डिमांड इंस्टेंस चाहिए होगी, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं इस टूल में। स्पॉट इंस्टेंस भी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम डायरेक्टली एक पर्टिकुलर प्राइस पे करके हम अपने चीजों को यूज कर सकते हैं या हम ले सकते हैं, ओके। तो फ्री टियर में आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर ऑफ आवर्स बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे, राइट। 750 आवर्स ऑफ EC2, 750 आवर दैट मींस पर डे का 2 घंटा, ठीक है ना, पर डे का 2 घंटा आपको लगभग आपको मिलेगा यूज करने को। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही घंटे एक दिन में यूज कर सकते हो, आप पूरे दिन चला के रखो, बट ओवरऑल इंटायर ईयर में आपको 750 आवर्स ही मिलेंगे, राइट। एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन यूज इट वेरी प्रिसाइजली, कि आपको पेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना है। हाँ, एंड एक मैंने कंसेप्ट बताया था कि लोड बैलेंस करने वाला, तो इलास्टिक बीन लोड बैलेंसिंग भी आपको सर्विस में मिलती है इन केस यू ऑप्ट फॉर इट, अदरवाइज आप उसका यूज नहीं करो।
नहीं करना चाहो तो मत यूज करो। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो भी मैंने बताया, EBS, ये बेसिकली एक तरह का SSD है। आप मैग्नेटिक SSD भी ले सकते हो और क्या कहते हैं स्नैपशॉट वाले भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द साइज कि आपको मैक्सिमम 30 GB तक का यूज करना है, राइट। सिमिलरली रीजनल डेटा ट्रांसफर भी आप ले सकते Am I audible, guys, now? Yes. Hello? Okay. So sorry that my mic was malfunctioned. Okay, sorry guys. Okay, तो मैं repeat कर देता हूँ जो मैं भी chat कर रहा हूँ. Sorry, encounter while screen this screen. Share. What's this? Just a second, guys. I am facing an issue. Remove from Chrome. Remove it. Screen share option. You can see my screen, right, or not? No. Okay, just a second. Sorry, an error occurred while sharing screen sharing. Just a second. Let me join. Just a second, guys. There is an issue in the Google Meet. मेरे स्क्रीन शेयरिंग को अलाउ नहीं कर रहा है वो. Sorry, can't share. मुझे परमिशन है या नहीं? I don't know.
Just a second. Yeah, please check that it's saying that I don't have the permission, I guess. It's sharing your screen. ऐसा नहीं होना चाहिए. It's very bad. Hello. Yep. Yes. Actually, all the permissions are already granted. Okay. Just a second. So hold on a window. Let me share a window first. Okay. Just a second, guys. There is an issue कि मुझे मीट में अलाउ नहीं कर रहा है. I'm joining from my tab and then मैं वहां से आपको शेयर करता हूँ. I want it. Okay, let me log in it again. Just a second. दिया है US मैनेजमेंट काउंसिल. ओके, तो जैसा मैंने अभी दिखाया कि मेरे पास EC2 में क्या क्या चीजें होती हैं, राइट. तो हम अपना खुद का एक मशीन क्रिएट कर सकते हैं. तो सेम मशीन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसमें जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होगा वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एंड देन फिर हम चीजें करके देखेंगे. बट while creating a machine, very important things needed to be focused कि हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप और द कनेक्टिविटी सेटअप वो बहुत सही से कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए. मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझेंगे. हो सकता है अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. ओके, so you have to go to the EC2 service on your search bar. You can see the service over here. जैसे ही आप सर्विस के ऊपर आएंगे, ओके, जैसे ही आप सर्विस के ऊपर आएंगे आपको इस तरह का रिसोर्स या इस तरह का व्यू नजर आएगा. ग्लोबल व्यू का मतलब क्या है, आप सर्विस की बात कर रहे हैं, सभी रीजन्स की बात कर रहे हैं कि सभी रीजन्स में आपके कितने मशीन्स अवेलेबल हैं, राइट. तो मेरे जैसे आप लोग अभी होंगे तो आप लोग के पास कोई भी रीजन में कोई भी मशीन क्रिएटेड नहीं होगी. जस्ट गो टू लॉन्च अ मशीन, क्लिक ऑन लॉन्च अ मशीन. मशीन लॉन्च करने में सबसे पहले आपको कितने मशीन लॉन्च करने हैं वो आप यहां से चूज करोगे. व्हाट द मशीन यू वांट, राइट. एंड द फर्दर थिंग, द टाइप एंड फायरवॉल, स्टोरेज, ये सारी चीजें आप एक एक करके डिफाइन करोगे. अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन फर्स्ट ईयर इंक्लूड 750 आवर्स ऑफ T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इन द रीजन, राइट.
और इस रीजन में बेसिकली क्या लिखा है, T2 माइक्रो इज अनअवेलेबल, तो आपको T3 माइक्रो का यूज करना है फॉर इट फ्री टेयर, राइट। इसके बाद आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट से चार्ज किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक मशीन क्रिएट करता हूँ, सपोज ML ऑपरेशंस करके मेरी मशीन होगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको यहाँ पे दिखेगा AMIs मींस कौन सी इमेज डालनी है, इमेज मींस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। तो यहाँ पे देखो Amazon लिनक्स, उबंटू सब कुछ है। तो आप ब्राउज मोर AMIs पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करो तो आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेंगे यहाँ पे, मैक के, रेड हैट सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो उबंटू में भी देखो यहाँ पे फ्री टियर अवेलेबल लिख के आ रहा है, राइट। यहाँ पे देखो फ्री टियर अवेलेबल लिख के आ रहा है, दैट मींस आप कोई भी सर्विस यूज कर लो, आपको फ्री टियर वाला ही यूज करना है until unless आप कहीं किसी कम्युनिटी या फिर किसी कंपनी में नहीं है तब तक, राइट। तो मैं एक इंस्टेंस वापस से लॉन्च करता हूँ, बैक कर दिया था मैंने, ML ऑपरेशंस। मैं उबंटू का यूज करना चाहूंगा और उबंटू में भी यहाँ पे देखो फ्री टियर अवेलेबल है यहाँ पे। अब उबंटू में कौन से सर्वर का यूज, कौन से वर्जन का यूज करना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो जो भी फ्री टियर होगा यहाँ पे लिखा होगा फ्री टियर एलिजिबल। तो मैं 18.04 का यूज करूंगा जो कि फ्री टियर में अवेलेबल है मेरे पास, करेक्ट। आर्किटेक्चर 64 बिट सिस्टम चाहिए, 32 बिट सिस्टम चाहिए, ARM चाहिए, x86 चाहिए, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, राइट। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, T2 माइक्रो का यूज करना है हमें अगर अवेलेबल है इसमें तो ओके। मैं नॉर्थ वर्जीनिया, मुझे ये याद रखना है क्योंकि होता क्या है कई बार रीजन्स हमें याद नहीं रहते कि कौन से रीजन में हमने क्या बनाया है और वो फिर बिल्ड होता रहता है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। की पेयर लॉगिन आपके पास नहीं होगा तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी है एक यहाँ पे पड़ा हुआ, तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, मैं एक नया क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करने के लिए आपको बस की पेयर का नाम डालना है, तो मैं ML करके ही नाम डाल दूंगा। PEM एक्सटेंशन और RSA इंक्रिप्टेड फाइल का यूज करूंगा मैं। क्रिएट की पेयर, जैसे मैंने इसको क्रिएट किया ये ml.pem नाम का फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गया है। दिस फाइल इज रिक्वायर्ड while connecting our service मशीन। हम अपनी मशीन से कनेक्ट जब करेंगे तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो गई। नेटवर्क सेटिंग लीव एज इट इज। सिक्योरिटी ग्रुप अभी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, सब कुछ को ऐसे ही छोड़ दीजिए, राइट। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्टोरेज पे आते हैं। स्टोरेज में हमें वॉल्यूम लेना है 8 GB का, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, राइट। यू कैन गेट अप टू 30 GB, राइट। 30 GB तक आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना हो तो यहाँ से आप SSD या कुछ भी आप यूज कर सकते हो, GP3, GP2 या जैसा भी रिक्वायर्ड होगा वैसा यूज कर सकते हो। मैग्नेटिक भी यूज कर सकते हो, इट इज द स्टैंडर्ड वन, बट वी आर यूजिंग GP2। 30 GB तक आप यूज कर सकते हो, ध्यान रखना। मैं इसको हटा के 30 भी लिख दूंगा तो भी मेरे लिए सफिशिएंट है, 30 से ज्यादा नहीं यूज कर सकता। ओके, एंड ओपन दिस एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन में आपको स्पॉट इंस्टेंस चाहिए या नहीं। स्पॉट इंस्टेंस मींस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें तुरंत के तुरंत एक मशीन क्रिएट करनी है विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू वांट देन क्लिक ऑन दिस एंड select your IAM and something and the pricing and auto recovery and lot of things other, right। तो हम अभी इसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट इसके मैच में नहीं है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। एंड नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अभी हमने क्या किया, एक इंस्टेंस लॉन्च किया है, कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं डाला है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप का यूज किया मैंने। अब देखो सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च इंस्टेंस। अब यहाँ पे आप अगर लॉग देखोगे तो सारा कुछ हमारा लॉग इंस्टेंस हो गया है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके व्यू ऑल इंस्टेंसेस आपको नजर आएगा, मतलब कितने आपने मशीन बना के रखे हैं। तो देखो मेरे पास ऑलरेडी 2 मशीन बने हुए हैं, एक ये वाला
जो कि मैंने बंद करके रखा है, स्टॉप करके रखा है, टर्न ऑफ किया हुआ है, और एक एमएल ऑपरेशन जो कि मैंने अभी बनाया और इसका इंस्टेंस स्टेट क्या है, पेंडिंग से अब क्या हो गया, रनिंग में आ गया। दैट मींस ये मेरा सिस्टम जो ये मैंने बनाया है ये अब रनिंग मोड में है। अब रनिंग मोड में है, आप यहाँ पे सभी चीज देख सकते हो क्या हमें मिला है क्या नहीं मिला। लेकिन ठीक है, आप इंस्टेंस आईडी पे क्लिक कीजिए और आपको सब इस पर्टिकुलर मशीन या इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में सारा कुछ यहाँ से मिल जाएगा कि इसकी आईडी क्या है, इसकी पब्लिक IPv4 एड्रेस क्या है, प्राइवेट IPv4 एड्रेस क्या है, DNS क्या है, डोमेन नेम क्या है इसका, एंड प्राइवेट DNS क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज किया है, EMI ID कौन सी है, एंड सो ऑन, राइट। थोड़ा सा अब नेक्स्ट टैब पे जाएंगे, सिक्योरिटी वाले टैब में हमने कोई रूल सिलेक्ट नहीं किया, तो ये जो रूल आप जो देख रहे हो, दिस इज अ डिफॉल्ट रूल अवेलेबल, दिस इज द डिफॉल्ट रूल अवेलेबल, राइट। अब कहोगे सर ये इनबाउंड आउटबाउंड रूल क्या है? इनबाउंड रूल मींस होता है इनकमिंग सिग्नल्स के लिए, मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए, दीज आर द इनकमिंग रिक्वेस्ट पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, एंड आउटगोइंग मतलब ये अगर किसी को रिक्वेस्ट भेजना चाहे, ये मशीन अगर किसी पर्टिकुलर नेक्स्ट मशीन को रिक्वेस्ट भेजना चाहेगा तो उसके लिए पोर्ट एंड प्रोटोकॉल का, ठीक है। हम अपना खुद का भी सेटअप कर सकते हैं इस पे, वी कैन क्रिएट आवर ओन सिक्योरिटी, ओके, वी कैन क्रिएट आवर ओन सिक्योरिटी रूल्स। सिमिलरली फॉर नेटवर्किंग अगर के आईपी एड्रेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, व्हाटएवर द आईपी एड्रेसेस आर वो आपको यहाँ मिल जाएगा। स्टोरेजेस, ये आपका स्टोरेज है जो कि 30 GB के साइज का हमने बनाया है। स्टेटस चेक, एवरीथिंग इज रनिंग कंप्लीटली फाइन। मॉनिटरिंग के लिए आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो कि आपने एक दिन में 1 घंटे में क्या क्या सर्विस यूज किया है, ओके। एंड टैग्स आर नथिंग जस्ट एन नेम एंड की वैल्यू पेयर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये एक मशीन है, इट इज अ पर्टिकुलर मशीन, राइट, बट दिस मशीन हेलो ओके, ठीक है, तो आवाज आ रही होगी, ओके, now it's echo problem, I guess it's cleared, I guess. Okay, so now what happened is okay, what we are checking that हमारा EC2 instance की IP एड्रेसेस क्या है। now this particular IP address जो आप देख रहे हो वो हर बार right, because it's a free IP address, जो अवेलेबल होगा वो उसको मिलेगा, but we can create an static IP address using the by going to the elastic IP in networking section, just go on the elastic IP one। मेरे पास एक ऑलरेडी एलोकेटेड IP है, मैं एक और IP एलोकेट
1, ऑब्वियसली मैं यहाँ से रीजन चेक करूंगा कि कौन से रीजन में हूँ मैं, यूएस ईस्ट 1 में हूँ, तो वेरी गुड, मैं रीजन वही रखूंगा, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम एंड allocate 1. So we are having a new IP. Okay, so this is my new IP address. Now ये जो IP address है ये हमने create तो किया है but अभी तक assign नहीं किया है, right? So click on choose and associate this IP address. Now हमने IP address अभी बनाया है, एक available free of cost एक IP address हमने बनाया, अब इसको अपने मशीन के साथ लिंक भी कर देते हैं. So click on this. इंस्टेंस से हमें लिंक करना है ऑब्वियसली, तो इंस्टेंस का नाम आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है ML ऑपरेशंस, उसको चूज कर लोगे. प्राइवेट आईपी डालने की जरूरत, ये प्राइवेट आईपी जो है उससे रिप्लेस हो जाएगा. तो आफ्टर क्लिकिंग दिस अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड, इसको क्लिक करके आप एसोसिएट कर देंगे. तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो आईपी एड्रेस थी उसको हमने अपने मशीन के साथ बाइंड कर दिया है. नाउ गो ऑन द EC2 डैशबोर्ड. Okay, click on the instances. आप इस पे चेक करेंगे और देखोगे अब जो हमें आईपी एड्रेस मिली है वो कौन सी मिली है, जो अभी हमने असाइन किया था 52.6 वाली. क्लियर. अब हमेशा जब कभी भी हम अपने इंस्टेंस को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो यही आईपी को मिलेगी. इंस्टेंस को ऑन या ऑफ करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, यू कैन सी ऑल इंस्टेंसेस ओवर हियर, जो कि यहाँ पे इंस्टेंस जिस रनिंग है, चेक मार्क ऑन द आइकन. इंस्टेंट स्टेट आप स्टॉप कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो. रीबूट करना आपको पता ही है, स्टॉप करना पता ही है. टर्मिनेट अगर आपने कर दिया अपने इंस्टेंस को, मतलब आपने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है. वो इंस्टेंस आपके AWS सर्वर से डिलीट हो जाएगा और सब कुछ रिलीज कर दिया जाएगा. ओके, तो इंस्टेंस टर्मिनेट तभी करना है जब हमारा काम कंप्लीटली खत्म हो चुका हो. क्लियर, क्लियर यहाँ तक. चलिए अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको कनेक्ट करना है. अब कनेक्ट करने के भी कई सारे ऑप्शन है. क्लिक ऑन दिस वन एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट. अब कनेक्ट करने में देखो AWS क्या कहता है कि आप SSH का यूज कर सकते हो. पुटी का आप लोग यूज किया होगा या सुना होगा पुटी का, तो पुटी आप लोग यूज कर सकते हो यूजिंग दिस. ये लिंक जो है पूरा SSHI करके ये कर सकते हो अलोंग विथ योर PEM फाइल जो हमने डाउनलोड किया था उसके थ्रू भी. करेक्ट, बट उससे भी इजीएस्ट ऑप्शन है ये EC2 इंस्टेंस कनेक्ट. हम पुटी एडिशनल एक सॉफ्टवेयर है, राइट, तो हम उसका यूज ना करें, हम डायरेक्टली इंस्टेंस पे जाएं और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. एक नया टैब में मेरा इंस्टेंस ओपन होगा, एस्टैब्लिश कनेक्शन होगा एंड देन वी वुड बी good to go with our instance. हमारे पास establishing SSH connection to instance, try again later. Okay, ये इसने error throw किया है. Let me see क्यों error throw कर रहा है. Okay, user name आपका Ubuntu ही रहेगा, right, obviously. Okay, let's try again. ओके, वेरी गुड. यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे कनेक्शन करते टाइम में. दैट मीन्स इसके नेटवर्किंग में कुछ इशू है. मतलब मैंने इंस्टेंस कनेक्ट किया है सही से, राइट, बट इसके नेटवर्किंग में अभी भी कुछ इशू है जो कि सही से काम नहीं कर रहा है. सो गो ऑन द EC2 डैशबोर्ड. Okay, and refresh the page. Okay, you can see the instance running. Okay. Okay, so हमें यहाँ पे टर्मिनल डालना पड़ेगा. क्लिक ऑन दिस. तो रनिंग वाला ये है. थोड़ा सा नीचे आते हैं सिक्योरिटी पे. जस्ट अ सेकंड.
ओके, तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें इनबाउंड और आउटबाउंड रूल को सेट करना पड़ेगा आई गेस। ओके, फॉर दैट इंस्टेंस मैं इधर लेफ्ट पे आता हूँ, क्योंकि देखो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल में सिर्फ एक ही कनेक्शन दिया गया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप्स पे, एंड इन दैट सिक्योरिटी ग्रुप्स वी हैव 2 डिफरेंट जोन्स। अब देखो इसमें 5 एंट्रीज परमिशन की है हमारे पास, और इस वाले में जो अभी जो हमने बनाया उसमें एक एंट्रीज है, राइट। डिफॉल्ट वाले का हम यूज नहीं कर रहे हैं। वी हैव दिस एंड दिस, ये मेरा पहले से बना हुआ है, और ये अभी हमने जो बनाया है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले वाले में क्या क्या है वो मैं उसको चेक करता हूँ, राइट। इनबाउंड रूल्स में आते हैं थोड़ा सा। ओके, एक्चुअली ये तो छोटा होना चाहिए ना। इनबाउंड रूल में देखिए हमारे पास IPv4 सेशन में कौन कौन से पोर्ट अलाउड है। दीज आर द पोर्ट वी हैव अलाउड ऑन आवर IPv4, राइट। द पोर्ट रेंज एंड द TCP रेंज, ये हमने यहाँ पे अलाउ करके रखे हुए हैं। एंड इफ यू गो ऑन द आउटबाउंड रूल्स, तो आउटबाउंड रूल्स में हमने IPv4 में ऑल ट्रैफिक अलाउ किया है। तो आउटबाउंड रूल हम लोग तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक मेरा सिस्टम, मेरा जो मशीन जो अभी क्रिएट किया वो किसी और से कनेक्ट नहीं होगा। अगर हम अपने मशीन को बाहर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इनबाउंड रूल को चेक करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ओके, इस वाले पे आते हैं, एंड नाउ क्लिक ऑन दिस सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सो दिस इज क्रिएटेड ऑन 9th of December. एडिट इनबाउंड रूल्स करके यहाँ पे ऐड रूल करना है हमें। कस्टम TCP पोर्ट हम रखेंगे 443। कस्टम में जाके एनीवेयर करना होगा हमें, एनीवेयर कहीं से भी हम उसका यूज कर सकते हैं। एंड अगेन रूल ऐड कीजिए TCP 883। दिस इज अगेन पोर्ट, anywhere IPv4, again TCP जाके 8080। These are the different port numbers, क्योंकि different connections के लिए different port number यूज होता है। Okay, and we have 8081 as well, so 8081 or anywhere in the world, great। ओके, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हम पर्टिकुलर IP भी डाल सकते हैं, अपने सिस्टम का IP, मतलब मैं अपने कंप्यूटर का IP भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, सिर्फ मेरा कंप्यूटर के थ्रू ही एक्सेस लिया जाएगा, राइट। सिर्फ मेरे कंप्यूटर के थ्रू ही एक्सेस लिया जाएगा, अदरवाइज वो कहीं से एक्सेस नहीं लेगा, नहीं लेगा। ओके, save these rules. Okay, I guess my rules has been saved. You can see all the rules has been saved over here, correct? Okay, चलिए, now go again to EC2 dashboard, click on the instance which are running. So this instance is running, click on connect. Okay, connect. I hope अब इशू नहीं आना चाहिए, I guess so. Okay, that means अभी भी इशू है SSH कनेक्शन में। Okay, कहीं ना कहीं कुछ इशू अभी भी बाकी है जो क्लियर नहीं कर रहा। लेट्स सी, इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल ही सेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां से ही जो होगा सो होगा, अदरवाइज सिक्योरिटी ग्रुप्स
परमानेंट ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप हमने डिफॉल्ट यूज किया हुआ है फॉर द लॉन्च इंस्टेंस। ओके, 5 परमिशन है हमारे पास। इसमें कौन कौन सी परमिशन दी हुई है ऑलरेडी? आईपीवी कस्टम आईपी, अच्छा पोर्ट नंबर 22 नहीं दिया मैंने। ओके, एसएसएच पोर्ट नंबर 22 का ऑप्शन नहीं दिया मैंने, करेक्ट। 1883 888 दिया, 881 880 1883 एंड 22, ये 2 ऑप्शन नहीं दिए मैंने अभी भी। ओके, तो ये 2 ऑप्शन मुझे वापस से देने पड़ेंगे। ओके, ट्वेंटी टू का ऑप्शन देना पड़ेगा ना, करेक्ट। चलिए इधर चलते हैं, ये वाला ही आईडी हमने यूज किया है, करेक्ट। ठीक है, हाँ ये वाला ही है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एसएसएच, चलिए एडिट इनबाउंड रूल्स। नाउ इन दिस इनबाउंड रूल वी हैव 22 टीसीपी 80443 हमने दिया है ऐड रूल। ठीक है, HTTP with port number 80, custom IPv4, ठीक है। 22 हमारे पास ऑलरेडी है, टेबल्स 22 80 एंड 443 HTTPS के लिए है। ओके, 22 हमारे SSH के लिए है, these are for this and these for the custom IP। ओके, ठीक है। So I guess इसको रिफ्रेश कर लें एक बार and then again, because basically this thing is not available for, जैसे मैंने अभी लिनक्स की मशीन ली है, सिमिलरली अगर हम विंडोज की मशीन लेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, अगर हम रेड हैट मशीन लेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, राइट। तो फॉर दैट पर्पस आई नीड टू चेक इट आउट प्रॉपरली। ठीक है, establishing SSH connection to the instance driving why SSH manager, चलो ठीक है, पुट्टी के थ्रू करके देखते हैं। कमांड कॉपी पुट्टी है क्या मेरे पास? ठीक है, तो मैं पुट्टी डाउनलोड कर लेता हूँ एंड देन वी कैन यूज दिस। गो टू डाउनलोड पुट्टी, कंफर्म, पुट्टी डाउनलोड ठीक है।
install इंस्टॉल हो गया क्या? नहीं, इंस्टॉल हो रहा है। फिनिश, वेरी गुड। So I have Putty installed on my machine. Okay, SSH पोर्ट नंबर 22। अब यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। सो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस? So this is my IP address. Copy this one, paste it here. Okay, load. As you be NTU12 पब्लिक की डालनी पड़ेगी शायद इसमें। ओके, close this. Again open this. Setting board. अच्छा, तो डाउनलोड्स जो हमारी पैम फाइल थी इसको ओपन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस। So this is the key file. Copy this key file. Copy this key file from here and in this putty okay. And for setting okay, and the port number was basically is server sent public key. Okay, ठीक है, let's see. Instances. CP 2022.
ओके Just a second, guys. I need to cross-verify whether everything is working completely fine or not. Okay. What is the default one? Okay. Correct. Security. Okay, I think there is some error with this certificate. तो मैं इसको चेक करना पड़ेगा ये इंस्टेंस क्रिएशन में क्या इशू हुआ है, सॉरी सिक्योरिटी बाउंड्स में क्या इशू है. आई नीड टू चेक इट अराउंड थोरोली. तो मैं आपको वैसे बताता हूँ, जो मेरा दूसरा इंस्टेंस बना हुआ है मैं उस पर आपको बताता हूँ. द सेम वे वुड बी डन, बट द जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स हैं बस वहां पे कोई चेंजेस करने पड़ेंगे. आई नीड टू चेक थोरोली कि कहाँ वो मिस हो रहा है. राइट, आई नीड टू चेक इट थोरोली विद दिस सिक्योरिटी ग्रुप्स और विद इन दिस इलास्टिक आईपी. इलास्टिक आईपी में आई गेस नॉट कोई इशू नहीं होना चाहिए. राइट, एवरीथिंग इज सेम, बट दिस सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ श्योरली कुछ इशू है. राइट, आई नीड टू चेक इट थोरोली, बट एवरीथिंग इज जैसे मैंने बताया वैसे ही हमें करना है. Go to on the dashboard. You have seen this instances which we are running right now. तो मैं इसको क्लिक करके दूसरे वाले इंस्टेंस को मैं ऑपरेट कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ. राइट, वंस दिस इंस्टेंस स्टार्टेड मैं उसको डायरेक्टली ही कनेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें भी अगर आप सिक्योरिटी टैब में देखेंगे, स्क्रॉल इट अ लिटिल बिट डाउन फॉर दिस Bartel, you can see the port number is correctly occupied with the SSH port number, which is 22, and there is no outbound rules. That means which is the default which we have, right? So correct. So मुझे इसको एक बार thoroughly check करना पड़ेगा with this ML operations. What is issue? What is the exact issue? मैं आपको इसके बारे में अगर होगा find out होगा, या जहां मैंने कहीं गलती की रही होगी while fast enough process में, तो मैं आपको कल बता भी दूंगा. Right. So as you can see, my system is currently running now. Just need to connect करने के लिए हम वापस से EC2 इंस्टेंस का ही यूज करेंगे. पब्लिक IPF की वही रहेगी, इंस्टेंस नेम उबंटू ही रहेगा. जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट. वंस वी क्लिक ऑन कनेक्ट, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा. आपके मीन्स आपका लैपटॉप आपके सिस्टम से कनेक्ट हो. यू कैन सी द सिस्टम इज कनेक्टेड एंड वी हैव नाउ दिस मशीन लोकेटेड ओवर हियर. नाउ इस मशीन में इट इज अ लिनक्स मशीन. अगर आप चाहो तो विंडो का भी मशीन यूज कर सकते हो. तो विंडो की मशीन जैसे आप लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग का नॉर्मल विंडो होता है, वैसे ही सारा कुछ यूआई आएगा. और विंडो की मशीन में क्या होता है कि आप यूआई के थ्रू काम कर सकते हो, बट लिनक्स की मशीन में कमांड यूज करने पड़ेंगे. तो व्हाट currently I have some Python codes and IoT codes. We can install our own Python. So already I have Python इसमें already install होता है. Python
3 minus version, you can see the Python 3.8.10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. इन केस अगर आपको कुछ और इंस्टॉल करना है तो आप इस पे इंस्टॉल कर सकते हो sudo apt get करके get install numpy, similarly pandas, similarly matplotlib. आप ऐसे करके अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो. So once you have every library installed on your machine, then you can create a folder and do your your algorithm work. And how we can open up Python code? Sudo nano is the editor, and suppose I want to make a ML code or ML algorithm, so ml.py, right? You have this IDE open over here. Import the library which are required. जैसे मुझे DB के लिए चाहिए तो MySQL dot connector as con. Similarly, import Boto3, right? Import NumPy, import pandas, right? ऐसे करके हम सारे चीजों को इंस्टॉल करेंगे और अपना एक फाइनल कोड लिखेंगे, राइट? सो कोड लिखने की और ऑब्वियसली हमें URL lib3 भी चाहिए as URL, right? Similarly, जितने भी required libraries होंगे एक एक करके हम इसमें import करते जाएंगे. We have to create the class, right? If we need a class or if we need a method, we have to define a method over here and then we have to run our code, right? Test app pass, correct? If name is equal to main print executing Python script, करेक्ट. अब इसको सेव करना है, Ctrl+X Shift+Y, तो ये मेरा कोड सेव हो जाएगा, राइट? अगर आपको वापस से ओपन करना है तो sudo nano करके ही ओपन करना पड़ेगा. ये आपका कोड रहा, राइट? यू हैव टू राइट योर ओन कोड व्हाट इज रिक्वायर्ड. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे कि हम क्या क्या कोड लिखने वाले हैं. नाउ टू रन दिस Python 3, your name is ml.py, this is ml.py, and okay, so we have an error on line number 7. कोई बात नहीं, इसको ओपन करते हैं. Okay, as it is a function, we have to provide just exact it. Ctrl+X Shift+Y, enter. So अब ये क्या एरर दे रहा है? क्योंकि इसके पास Boto3 नाम का कोई लाइब्रेरी नहीं है. So to install the Boto3 library, you can go on import install Boto3 on Linux. ठीक है, आप यहाँ से इंस्टॉल Python Boto3 की लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हो. सिमिलरली NumPy, Pandas आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो. ये पूरा इंस्टेंस ही लॉन्च करके दिखाएंगे. कैंसिल. अच्छा, ओके, ये this is the command. You can see this is the command. pip install Boto3. So हम लोग Python 3 वर्जन का यूज कर रहे हैं. So we have to write pip3 install pip3 install Boto3. Now our library, जो भी हमारा लाइब्रेरी होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. Similarly, if we want NumPy, pip install NumPy, pip install Panda, and so on करके. क्या अगर आपको pip install से नहीं चल रहा है, you can use sudo apt get also.
right? So in this way you can install your libraries. अब देखो ये पांडा का एरर बोलेगा, numpy का एरर है, सिमिलरली पांडा का भी एरर आएगा। तो ऐसे करके हम एक एक करके सभी चीजें इंस्टॉल कर लेंगे। Now once we install each and everything, अगर हमने सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया है, नाउ हमारा कोड जैसे चलता है, जैसे आप मशीन लर्निंग का कोड चलाते हो या एल्गोरिथम चलाते हो, रन करते हो, सेम वे में आपको डेटा से डाउनलोड करना है एंड उसको चलाना है, ट्रेन करना है, डिप्लॉय करना है। ये एक आपका एग्जिस्टिंग मेथड होता है जो अभी तक आपने सीखा है अपने लैपटॉप पे काम करने का, राइट? जो आपने अभी तक सीखा है वैसे ही काम करना है। बट इन द सेकेंड वे जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम लोग को ये इनबिल्ट लाइब्रेरी का यूज करना है जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज सेजमेकर। सेजमेकर में हमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कोई मशीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। दीज आर जस्ट फ्री सर्विस विच वी नीड टू मेक। दीज आर एज सिंपल एज फ्री सर्विस जो कि हमें यहाँ पे चलाना है, राइट? यहाँ पे आपको सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी एक एक करके, जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए। बट नेक्स्ट वाले पेज में जो हम लोग करने वाले हैं उसमें कोई इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जस्ट यू नीड टू इंपोर्ट द थिंग्स, राइट? सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर मशीन। या मशीन में एक इशू है, as the inbound rule is not matching with the parameter which we set for our EC2, वो मैं आपको चेक करके कल shortly before moving ahead to the class मैं वो चीज आपको क्लियर कर दूंगा, right? Okay, so is there any questions required for or is there any question in your mind which is available जो आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। Yes, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, if you have any doubt or not. Everything is clear? Okay, sorry. I'm so sorry. Now, okay. हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। सो ठीक है, इन केस ओके ओके, आई गेस ये आप लोग जब एक बार प्रैक्टिकली करोगे तो आप लोग को क्लियर होगा, राइट? बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फर्स्ट बार अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा मशीन लेना है, कौन सा उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, क्या उसमें नेटवर्क सेटिंग्स होनी चाहिए, ये हमें फर्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना पड़ता है। वंस वी हैव अ मशीन वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट, हमें बस डायरेक्टली कनेक्ट करना होता है, no need to think about again. Okay, so yeah,
so this is for today's session. In case अगर कोई कनेक्शन में या उसमें आपको डाउट आता है तो ऑब्वियसली मैं इसको डील आउट कर भी दूंगा, और इन केस अगर आप स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं बिफोर जॉइनिंग द टुमारो सेशन, अगर आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ping me over the WhatsApp. You have my WhatsApp number, right? So I would be happy to help you directly on the call or on the WhatsApp itself. Okay. So yeah, so that's for today's session. And in case if you do not have any doubts, so I'm handovering the session to the organizing team, and they would move ahead with the concerned steps. Yeah. So yeah, handing over to Abhishek sir if you are available. So we should end the session because I think all the participants have no doubts what is taught to them in both the sessions. So we will resume the session tomorrow at 7. Yeah, I'm okay. Yeah, no worries. Or is there any doubt to anyone? I don't think so, because nobody is responding. That means okay, no worries. So if you have any doubt while performing any step, yeah, if you have any doubt while performing the step, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी क्लास में आप लोग परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, आप लोग सभी देख रहे होंगे. सो वाइल परफॉर्मिंग अगर आप शाम में या कल सुबह ट्राई करते हैं इन स्टेप्स को परफॉर्म करने का, एंड आपको कहीं भी डाउट आता है कि सर यहाँ के आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, राइट? यू ऑल हैव माय व्हाट्सएप नंबर, एंड तो मैं उसको क्लियरली उसी टाइम सॉर्ट आउट कर दूंगा, राइट? So no need to think again. Just ping me that hey, I am stuck over here. What to do now? So I'll be happy to help to all of you guys. Yeah. Okay, I think Amit, thanks for the session. Yeah. Okay. Yeah. Thank you to all of you guys. And we will meet again tomorrow at 7. Yes. Okay, bye. Okay, Good. that would be great. Yeah. Sure.